Hello students, I am Seema Jain from Vishweshwarya Group of Institutions, GB Nagar Dadri. I welcome you all in this module of Introduction of Biopharmaceutics. This is a new subject of BPharm third year 6th semester. So today I will discuss an introduction of this subject in a very easy language so that all of you will be able to understand the concepts and the basics of this subject. So first I will start from the definition of biopharmaceutics. What is biopharmaceutics? The term biopharmaceutics is given by a scientist known as Dr. J. Levy 1960. In definition, you can see the term biopharmaceutics is made up of by combining two words. First word is bio and second word is pharmaceutics. What is bio? Bio का मतलब होता है bio availability of pharmacology. Means you can say the bio is the study on living system or life. What is the meaning of pharmaceutics? It is basically a technology or study of various factors of dose form like solubility of drugs, absorption, rate of metabolism, or rate of excretion. So combining bio plus pharmaceutics is a new subject, that is biopharmaceutics. You can also say that it is a simultaneous study of pharmacology and pharmaceutics. मतलब when pharmaceutics is related with the biology, then it will be called as biopharmaceutics. मतलब you have studied a lot in pharmaceutics from first semester to fifth semester, like formulation different dose form, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलेक्सिस, बहुत कुछ बनाया है आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एंड अपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी. बट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दीज डोज फॉर्म ऑन लिविंग सिस्टम? जो भी आपने फॉर्मुलेशन बनाई थी अपने फर्स्ट ईयर में या अपने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो उन डोज फॉर्म का ह्यूमन बीइंग पर क्या इफेक्ट है? तो इन सब इफेक्ट की स्टडी आप करते हो इस सब्जेक्ट में, दैट इज नोन एज बायोफार्मास्यूटिक्स. ओके. And we can say it is the study of relationship between physicochemical properties and pharmacological action. Means the pharmaceutics, in biopharmaceutics you have to consider two basic factors, that is physicochemical factors and pharmacological factors. आपको दो फैक्टर की स्टडी करनी होती है. What are physicochemical factors? They are solubility of drugs, disintegration or dissolution. And what are pharmacological action? These are absorption of drug or onset of action. Now come to the definition, proper definition of biopharmaceutics. What is biopharmaceutics? It is defined as the study of factors influencing the rate and amount of drug that reaches the systemic circulation and the use of this information to optimize the therapeutic effect of the ड्रग प्रोडक्ट्स. मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी है जो कि रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं. जब भी आप किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो वो मेडिसिन पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, किस रेट से जा रही है, मतलब कितने स्पीड से जा रही है और कितने अमाउंट में जा रही है. ये सारे फैक्टर्स की स्टडी आप करते हो बायोफार्मास्यूटिक्स में. और इन्हीं फैक्टर की हेल्प से अगर आपने ड्रग की थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़ानी है तो आप वो भी कर सकते हो. तो आप कह सकते हो इन बायोफार्मास्यूटिक्स यू हैव स्टडी अबाउट सो मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग, बिकॉज वट एवर ड्रग यू हैव बीन टेकिंग आइदर ओरली और पेरेंटली, फर्स्ट ये ड्रग कहाँ जाएगी? इट विल बी एंटर इन टू द ब्लड सर्कुलेशन. आफ्टर ब्लड सर्कुलेशन ये क्या करेगी ड्रग? डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड करेगी. क्यों? बिकॉज रिसेप्टर्स ही साइट ऑफ एक्शन होते हैं. जब तक ड्रग रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी तब तक ड्रग अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी. ठीक है. जब भी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी और अपना इफेक्ट शो करेगी. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच वी विल हैव टू कलेक्ट, लाइक ड्रग एंटर कर रही है ब्लड में, देन इट बाइंड हो रही है रिसेप्टर से, देन इट विल शो इट इफेक्ट. ऑल दिस फैक्टर की स्टडी आप कहाँ करते हो? बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में. एंड with the help of these factors we can also improve the efficacy of the drug. So before starting other factors we should also know what is drug and what is
डोजेस फॉर्म। जब तक आपको ड्रग और डोज फॉर्म नहीं पता होगा आपको बायोफार्मास्यूटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज ड्रग? ड्रग इज अ सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, क्योर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मीन्स ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट शो थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब ठीक करने वाला इफेक्ट शो करता है किसी भी एनिमल में या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग में। What is dose form? It is a drug product that contains drug substances along with other ingredient. Means it is a drug product. Means in what form drug will be formulated. कि अब आपके पास ड्रग अवेलेबल है तो ड्रग को आपने डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं करना होता, ड्रग को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको पेशेंट को देना होता है। तो जिस भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो दैट इज अ डोजेस फॉर्म। You know, drug is obtained from varieties of sources, for example, plant sources, animal sources, mineral sources और synthetic sources. Okay, बहुत सारे sources से आपको drugs मिलती है, but all these are called raw materials या raw drugs. ये जो भी आपको plant से मिल रहा है या animal से मिल रहा है इसे हम raw materials कहते हैं। These drugs cannot be administered in their pure form. आप ये raw materials को एज अ प्योर फॉर्म में पेशेंट को नहीं दे सकते। दे आर कंबाइंड विद अ नंबर ऑफ इनर सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एक्सिपिएंट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ कन्वेंशनल डोज फॉर्म एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ सुटेबल रूट। आपको इन्हीं सारे रॉ मटेरियल को किसी एक्सिपिएंट के साथ कंबाइन करके एक सुटेबल डोज फॉर्म बनानी होती है पेशेंट को एडमिनिस्टर कराने के लिए। Now, what is dose response relationship? That is DRR. Generally depends on different routes of administration and different doses form. मतलब it is the action of drugs from different routes. मतलब आपकी जो ड्रग है उसे आप कई रूट से दे सकते हो। पेरेंटरली इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, ओरली या ट्रांसडर्मली। तो इट इज़ द एक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स एंड डिफरेंट डोज फॉर्म्स। अब डिफरेंट डोज फॉर्म दोगे तो ड्रग का इफेक्ट भी अलग अलग ही होगा। एज यू नो एवरी रूट हैविंग इट्स डिफरेंट एक्शन इन द सेम मैनर, एवरी डोजेस फॉर्म विल बी इफेक्ट डिफरेंटली। अब जे अगर रूट चेंज करोगे तो भी आपका ड्रग का इफेक्ट चेंज होगा, डोज फॉर्म चेंज करोगे तो भी ड्रग का इफेक्ट डिफरेंट होगा। नाउ Now we will talk about some general terms that are equally important as other definitions like what is pharmacokinetics, what is pharmacodynamics, what is bioavailability. I think आपने ये फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट यहाँ हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं वी कैन ऑल्सो से तो it is a study of time course of drug like ADME. What is pharmacokinetic? Pharmacokinetic is the study of time course. As you can see, pharmacokinetic is a word that is made up of by two words, pharmacon and kinetics. Pharmacon means drugs and kinetic means movement of drug. Pharmacon का मतलब होता है drug and kinetic का मतलब होता है movement, मतलब drug आपका movement कर रही है। तो what is the meaning of pharmacokinetics? Pharmacokinetics is what does body response to the drug. मतलब we can say what the body does to the drug. आपने अगर कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, वो एब्जॉर्प्शन करती है, वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, या वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही है या ड्रग को एलिमिनेट कर रही है। बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, यही है यही आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स देन इट इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ऊपर हमने क्या बात की थी, फार्माकोकाइनेटिक में हमने बात की थी कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। एंड फार्माकोडायनेमिक्स में हम कहेंगे व्हाट ड्रग रिस्पॉन्स टू द बॉडी, मतलब ड्रग का रिस्पॉन्स क्या है बॉडी के लिए, ड्रग क्या कर सकती है
ड्रग के रिस्पॉन्सेज बहुत हो सकते हैं, जो भी ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक. ओके, मतलब इट माइट बी रिड्यूस टेम्परेचर, इट मे रिलीव फ्रॉम पेन और एनी अदर एक्शन. अगर हम बात करें बायो अवेलेबिलिटी की, तो व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? द बायो अवेलेबिलिटी, it is the actual amount of drug that reaches into the systemic circulation is known as bioavailability. मतलब जब भी आप किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देते हो, तो उसके ब्लड में या उसकी बॉडी में कितना ड्रग, कितना एक्चुअल अमाउंट पहुंचा, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी. कितना अमाउंट कितनी देर में पहुंचा, दैट इज रेट एंड एक्सटेंट. यू कैन ऑल्सो डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी, the rate and extent of drug that reaches into the systemic circulation is known as bioavailability. Here I want to explain you what is rate. Rate is directly related to time, means how much time drug will take to reach in the systemic circulation. मतलब कितना टाइम लेगी ड्रग आपके ब्लड में पहुंचने में, और एट व्हाट स्पीड ड्रग एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. आप कह सकते हैं कि ड्रग किस स्पीड से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है. यू कैन सी इन पेंट्रल रूट लाइक इंजेक्शन, इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब बिकॉज इट डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. आप देखते हो जैसे हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, तो ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाती है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है. लेकिन टैबलेट इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती, उसे बहुत ज़्यादा पहले डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, देन डिजोल्यूशन, देन एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ता है. ओके, देन व्हाट इज एक्सटेंट? एक्सटेंट मीन्स amount of drug. It is the amount of drug that reaches the systemic circulation with respect to time. Okay, यहाँ आपको एक बात याद रखने वाली है, the difference between biopharmaceutics and bioavailability. In biopharmaceutics, you have to study about various factors influencing rate and extent of drug, but in bioavailability, you have to study about the rate and extent of the drugs. Okay, बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन एंड बायोफार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन हल्की सी सेम है, लेकिन आपको दोनों में अंतर पता होने चाहिए. बायोफार्मास्यूटिक्स इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स, बट बायोअवेलेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग्स that reaches into the systemic circulation. Now we will talk about the usefulness of biopharmaceutics. Biopharmaceutics you can also use to evaluate bioequivalence in the different formulation. What is bioequivalence? Bioequivalence is the similarity of two drugs that share the same desired outcome for patient. It shows that the two drugs release the, the active ingredient at the same amount into the blood stream. आपने देखा है अगर हम दो डिफरेंट कंपनीज की सेम ड्रग दो डिफरेंट पेशेंट को देते हैं, तो उसमें इफेक्ट भी सेम ही होने चाहिए. अगर सपोज आपकी एक कंपनी सिप्ला है, एक कंपनी रैनवेक्सी है, दोनों ने ही बनाई आपका पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की टैबलेट, और ये दोनों टैबलेट अगर आपने दो डिफरेंट इंडिविजुअल को दी है, तो इनके इफेक्ट सेम होने चाहिए. दैट इज द स्टडी ऑफ दिस फैक्टर्स इज बायो इक्वलेंस. ओके, second, what is second use of biopharmaceutics? To study about drug interaction. अब बायोफार्मास्यूटिक्स की हेल्प से ड्रग इंट्रैक्शन की भी स्टडी कर सकते हैं. व्हाट इज ड्रग इंट्रैक्शन? अ ड्रग इंट्रैक्शन इज द चेंज इन द एक्शन ऑफ ड्रग और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग कॉज्ड बाय टेकिंग ड्रग विद अ फूड, बेवरेजेस, सप्लीमेंट्स और विद अनदर ड्रग. अगर आप एक ड्रग को किसी दूसरी ड्रग के साथ लेते हैं, किसी लिक्विड के साथ लेते हैं या किसी फूड के साथ लेते हैं, और ड्रग का एक्शन चेंज हो जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं इट इज़ ड्रग इंटरेक्शन. और इसी ड्रग इंटरेक्शन की आप स्टडी कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स. ठीक है, नेक्स्ट यूज है सब्जेक्ट का टू इवेल्यूएट ड्रग्स इन प्लाज्मा और यूरिन. मतलब ड्रग आपके बॉडी में कितना गया, वो आप प्लाज्मा सैंपल लेके या यूरिन सैंपल लेके पता कर सकते हैं. फोर्थ यूज इज टू एस्टिमेट द पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स. आपकी बॉडी में जब ड्रग जाती है वो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिपोर्ट फॉर्मेशन करती है, डिपोर्ट फॉर्मेशन के बाद ड्रग डिपोर्ट से
बॉडी में रिलीज होती है स्लोली स्लोली। तो कितना डिपोट बना, कितना ड्रग रिलीज हुआ, इस सारे फैक्टर की स्टडी भी आप कर सकते हो बायोफार्मास्यूटिक्स में। Now, here are some significances and applications of biopharmaceutics study. First one is the aim of biopharmaceutics is to adjust the delivery of a drug to the site of action to provide optimal therapeutic activity. Means किस ड्रग को किस रूट से दिया जाए कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, इन सब की स्टडी आप करते हो बायोफार्मास्यूटिक्स में। Second, biopharmaceutics consideration in the design of the dosage form means किस ड्रग को किस डोज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। आप एक ही ड्रग की टैबलेट भी बना सकते हो, एक ही ड्रग का आप इंजेक्शन भी बना सकते हो। रॉ मटेरियल आपका थेरेप्यूटिक एजेंट है, दैट इज नोन एज ड्रग। उस ड्रग को आपको किस डोज फॉर्म में डिज़ाइन करना है so that it will be more effective for the patient. Okay, it can be done only after the complete or thorough study of biopharmaceutics. Third, to determine the ultimate dose of a drug in a dosage form, मतलब किस तरह की कितनी डोज इफेक्टिव है और किस डोज से ऊपर कोई ड्रग टॉक्सिक हो सकती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका टू डिटरमाइन द अल्टीमेट डोज ऑफ अ ड्रग इन अ डोज फॉर्म, कि ड्रग की कितनी डोज पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। आपने देखा होगा जितनी भी डोज फॉर्म आती हैं उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, ठीक है। आप उस क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा ड्रग नहीं ले सकते, उस क्वांटिटी से बहुत कम भी नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा लेंगे तो ड्रग का साइड इफेक्ट होगा, बहुत कम लेंगे तो ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट आपका कहता है टू डिटरमाइन द अल्टीमेट डोज ऑफ अ ड्रग इन अ डोज फॉर्म, कि आपको डोज फॉर्म में उस ड्रग की कितनी डोज फिक्स करनी है। वट अबाउट फोर्थ पॉइंट, ईच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्पेशल बायोफार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन, ईच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिफरेंट बायो अवेलेबिलिटी। हर रूट से अलग अलग रेट एंड एक्सटेंट में ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं, तो आप इन सब फैक्टर की स्टडी भी बायोफार्मास्यूटिक्स में कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। In our next lecture, we will discuss about absorption of drug. Thank you.